Alright, it's time I introduce you to the blank type questions within which GRE has two subtypes. The first one is the sentence equivalence type question, and the second one is what the GRE calls text completion. Now, the blank type questions are super important because they make more than half of the actual GRE. Like for instance, if you look at the first verbal reasoning section, you can expect to see around 4 sentence equivalents and 3 text completion questions. And keeping in mind that the first section, the first verbal reasoning section on the GRE is just 12 questions, that means 7 out of 12 are just blank type questions, and 7 out of 12 is roughly 58%, right? And if you talk about the second verbal reasoning section, you can expect to see around 3 sentence equivalents and 4 text completion questions. Again, this can vary a little, but what I have seen is mostly and almost always on the new updated shorter GRE, you have 7 blank type questions per verbal reasoning section. And if you talk about the second verbal reasoning section, 7, since it has a total of 15 questions, so 7 out of 15 means that the blank type questions make up around 47% of the second section. Now, it's super safe to say that more than half of the GRE verbal reasoning section is made up of blank type questions. So of course these questions are super important to ace. If you're not trying to ace the blank type questions while preparing for the GRE, it's basically the equivalent of not preparing for the verbal reasoning section at all. Now, how do we prepare for them? Well, few things that you will need to work on would be, of course, your technique, right? You have to perfectly apply the technique that you learn from these lessons, and of course, timed practice is essential to bolster those techniques that you learn here and develop few of your own and understand where your weaknesses and your strengths lie and adapt accordingly. Of course, I give the option of you guys being able to join a live query class every Friday. So it's not like the extent of this course is just these videos and the assignments uploaded in the Google Classroom that you would be joining, right? You can definitely get some live feedback from me and from the alumni added in the group, which you will be a part of if you have purchased this course. So coming back, these are super important questions. You have to perfect the technique. You have to do timed practice. Untimed practice does more harm than good, okay? And lastly, you will need to take your vocab seriously. If you do not memorize around 900 to 1100 words, new words, then there's a chance that you will be unable to solve a blank type question on the actual GRE because you did not even know the meaning of a word, right? So I keep saying that for vocabulary, Magoosh vocabulary flashcards are super good. But other than that, on the updated shorter GRE, I've noticed that there are a lot of new words which are appearing as compared to what there used to be on the shorter GRE, on the previous, longer GRE. So basically the type of vocabulary that they're using now in their tests has slightly changed. So I strongly recommend anyone preparing for the GRE to make a list of all the unknown words they encounter during practice as well, right? We'll get into vocabulary later on. You will get to read a blog on vocabulary where I have written in detail how to ace vocabulary and what are the best resources for it. It's just 3 to 4 minutes read.
does wonders. Anyway, so coming back, let's talk about timed practice a little. So for sentence equivalence type questions, I recommend that you spend a maximum of 1 minute per question. Sentence equivalence type questions, we'll get into the introduction of these later on. For now on, just know that there's one blank type question which is called the sentence equivalence question, right? So for sentence equivalence question, I recommend that you spend a maximum of 1 minute per question, and this is a timing scheme that you would, this is the rate that you would follow while you are solving your assignments. For the text completion questions, you basically have three subtypes. Some text completion questions are single blank, some are double blank, some are triple blank. For the single blank types, I recommend that you spend no more than 50 seconds in practice. And of course, that would develop a habit and you would end up doing the same on the actual GRE. And for the two blank questions, I recommend that you spend a maximum of 1 minute per question. And for a triple blank question, this becomes 1 minute 15 seconds per question, right? So of course, when you see any practice assignment in this course, you download it first, and if it's a blank type assignment, just look at the blend of the sentence equivalence and text completion questions and dedicate these times that you should be spending on each question. Come up with a total time that you're supposed to solve the assignment within, and shoot. One thing that I would like to add, like I've already basically proven to you that these are super important. The second thing is that they're even more important because they are the lowest hanging fruit. Why do I say that? Why do I say that these blank type questions are the lowest hanging fruit? Well, my belief is that you have roughly the same weightage in terms of score when it comes to a blank type question versus a passage type question. But the best thing is that for a blank type question, there's not much text. There's just few lines which you have to read, and that means less reading time spent. I understand that fewer lines mean that you will have to now focus really hard on the nuances and get the context really well. But that at the same time means that you can spend lesser time and basically get the same output, right? So I strongly recommend test takers to go for this lowest hanging fruit, and basically when the actual test comes, when they're taking the actual test, first complete the blank type questions and then move on to the passages. Anyway, let's go into practicing seeing some sentence equivalence and text completion type questions. The timings that you would see in this course will not be the same as the ones that I've just mentioned on screen, because of course the timings that I use in this course are used keeping a lot of considerations in mind, like what do I need to load the test taker or the student preparing for the test with in order to get a specific result. So long story short, as the timings would be slightly skewed, slightly different here, but yeah, that's just your introduction to sentence equivalence and text completion type questions. While you're practicing, I would say you strictly follow these timings. सबसे पहले यार बात करते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस की। टेक्स्ट कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं ना यार, इनमें वोकेबलरी इतनी मुश्किल नहीं होती है। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि वोकेबलरी जो है दैट विल, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मीडियम टू हार्ड समझ लो, राइट? इट्स नॉट लाइक हार्ड टू डेवलिश
I wouldn't classify it like that, but a medium to hard. सेकेंड चीज़ ये है कि टेक्स्ट कंप्लीशन इज़ अ टेस्ट ऑफ योर सेंस ऑफ सेंटेंस structure primarily. How well do you understand vocabulary? How well do you understand the context? How well can you pick clues from the sentence and plug in a word which logically completes the meaning of the sentence? Which brings me to कि टेक्स्ट कंप्लीशन के सवालात में यार 3 टाइप्स आती हैं फर्दर. एक टेक्स्ट कंप्लीशन का जो सवाल होता है वो सिंगल ब्लैंक होगा, ठीक है. एक सवाल जो है वो डबल ब्लैंक होगा और एक सवाल जो है वो ट्रिपल ब्लैंक होता है. अब जो ये सिंगल ब्लैंक वाला सवाल है ना, इसके लिए यार उन्होंने आपको 5 ऑप्शंस दी होंगी और आपने एक सेलेक्ट करनी होगी, राइट. जो डबल और ट्रिपल ब्लैंक्स वाले हैं इनके लिए इन्होंने आप जीआरई पे आपको 3 ऑप्शंस पर ब्लैंक दी होंगी और आपने 1 ऑप्शन पर ब्लैंक सेलेक्ट करना होगा. फॉर एग्जांपल इस ब्लैंक ए के लिए और बी के लिए 3 ऑप्शंस हैं. वो जो 3 ऑप्शंस ब्लैंक ए के लिए दिए गए हैं उनमें से एक इसमें प्लग इन करना है और इसी तरह बी के लिए जो 3 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से एक प्लग इन करना है इसमें. सेम विद इफ़ यू हैव ट्रिपल ब्लैंक. अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो ट्रिपल ब्लैंक वाले सवालात होते हैं ये सिंगल ब्लैंक से होते तो मुश्किल ही हैं और जीआरई में कोई पार्शल मार्किंग भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ट्रिपल ब्लैंक वाला सवाल आ जाए और उसमें आप दो ठीक कर दो और एक गलत कर दो तो आपको पार्शल मिल जाए. अगर वो कंप्लीट सही है तो वो सही है, अदरवाइज नहीं है, राइट. तो ट्रिपल ब्लैंक वाले डेफिनेटली नेचुरली ज़्यादा मुश्किल होंगे. लेकिन आई डोंट वांट यू टू गो इनटू वेरी कॉम्प्लेक्स टाइमिंग्स. एक अच्छा रेट ऑफ सॉल्विंग जो है ना टेक्स्ट कंप्लीशन के सवालात का वो है कि आपने 1 मिनट पर क्वेश्चन का रेट रखना है, ठीक है. मिक्स करके आपने सॉल्व करना है. जो हमारी असाइनमेंट जो आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा उसमें भी टेक्स्ट कंप्लीशन के सवाल जो मिक्सड अप होंगे एक्चुअल जीआरई टाइप. तो ओवरऑल 1 मिनट पर क्वेश्चन का जो रेट है वो एक ऑप्टिमल नेट रेट बन जाता है 6 टेक्स्ट कंप्लीशन के सवालात के लिए. तो जब आप असाइनमेंट्स करोगे तो आपने टेक्स्ट कंप्लीशन के अगर 10 सवाल आ जाते हैं तो उनको 10 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है विद अ रेट ऑफ 1 मिनट पर क्वेश्चन ऑफ कोर्स. अब इनको अप्रोच कैसे करना है, इनको सॉल्व कैसे करना है, क्या बेबी स्टेप्स हम लेके अपनी हैबिट्स अच्छी डेवलप कर सकते हैं कि हम ट्रैप्स में ना फंसें, उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले आई वॉन्ट यू टू बम्प इनटू द टेस्ट योरसेल्फ and then I will explain the solution to you. So let's do that. चलिए जी, लेट्स डिस्कस द अप्रोच. यार टेक्स्ट कंप्लीशन के सवाल जब आप करोगे तो सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है ना, ऑफ कोर्स रीड इट लाइक द एंड
कम अप विद अ गेस फिल। अब ये जो कमिंग अप विद अ गेस फिल है ना यार, ये इन सवालात का सबसे क्रूशल स्टेप है। अब ये गेस फिल आप लोगों ने अपने बैकग्राउंड नॉलेज से नहीं करना, अपने किसी बायस से नहीं करना। लाइक यू हैव टू लुक आउट कि यार ये मैं इसको इस तरह से कंस्ट्रू कर रहा हूँ, मेरा अपना कोई बायस है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बेस, या वाकई इस सेंटेंस की कॉनोटेशन उस तरफ जा रही है। ठीक है, आपने ये जो गेस फिल आप करोगे, इसका स्ट्रिक्ट रूल बनाओ कि ये जो क्लू है ये आपने, you have to take the clue from the sentence। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने ये किया था, अगर मैं कोई चीज़ पढ़ूंगा ना तो मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट करूंगा कि अच्छा यार यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लिखा हुआ ना, इधर से मुझे क्लू मिल रहा है कि यार यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए, राइट। और ये जो क्लू लेने वाली एबिलिटी है ना, एक गेस फिल, बाय द वे गेस फिल कुड बी अ वर्ड in any language, Urdu, Pashto, Shina, whatever you speak. It could be, it could be in English, it could be a phrase. कभी कभार ये होता है कि यार गेस फिल बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा होता, फिर क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कोई पोलैरिटी डिसाइड कर लेते हैं कि यार इसमें कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा, कोई अच्छा वर्ड आएगा, नहीं यार इसमें कोई नेगेटिव वर्ड आएगा, राइट। तो ये जो पहला स्टेप है ना यार गेस फिल करने का, दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट, आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ। बाकी ये है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये आपका जो पहला स्टेप है ना, ये बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। खैर, कमिंग टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 में आपने ये करना है कि फिर अपने गेस से ऑप्शंस को मैच करना है, राइट। एंड वंस यू हैव डन दैट, पिक इट। फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने जो गेस किया उसका सिनोनिमस सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन सेंट्रलाइजेशन आ रहा था। थर्ड स्टेप क्या होगा? और आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स कीप स्किपिंग दिस थर्ड स्टेप, एंड दिस थर्ड स्टेप इज टू fill it, select it, fill it in your head। जो भी वर्ड है उसको अपने जहन में उसको फिल करके पूरा सेंटेंस पढ़ो, fill it and basically read। अब होता क्या है कि अगर देर इज समथिंग रॉन्ग तो वो एक फीलिंग रह जाती है कि यार देर इज समथिंग विच इज ऑफ अबाउट द fill that I've chosen for it, right? अब उस केस में मैं स्टूडेंट्स को ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि रीसॉल्व मत कीजिए। स्पीकिंग फ्रॉम माई 5+ years of experience and having helped students get near perfect or perfect scores on verbal starting from like way below 150 sometimes, मैंने यही देखा है कि लोग जब रीसॉल्व करते हैं ना ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस को, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यार वो गलत कर जाते हैं दोबारा, या अगर पहले ठीक होता है ना फिर गलत कर जाते हैं। तो बेस्ट ये होता है कि फिल इट एंड रीड। इफ इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, नहीं यार देयर समथिंग ऑफ अबाउट इट, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि उसको मार्क कर दो। जीआरई का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके राइट इधर यहाँ पे एक मार्क का लगा होता है, उसको मार्क कर लो, आगे चले जाओ। बाकी सवाल से जो टाइम बचेगा फिर यू कैन कम एंड रीविजिट इट। सो आई विल एक्ट अपॉन माई ओन एडवाइस। सबसे पहले गेस फिल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सो द टेक्स्ट इज सेइंग कि डोमिनेंट इंटरेस्ट, आई डू नॉट नो व्हाट डोमिनेंट इंटरेस्ट आर, बट ओके फाइन, often benefit most from dash of governmental interference। आई थिंक यहाँ तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं, एक्सेस ऑफ गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस, एब्सेंस, कुछ भी हो सकता है, रेमिफिकेशंस ऑफ गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस, पता नहीं क्या। खैर आगे बढ़ते हैं। In business, okay fine, so dominant interests often benefit from dash of governmental interference in business। अब मैं यहाँ तक तो polarity भी guess नहीं कर सकता ना। फिर कहता है कि since they are able to take care of themselves if left alone। what does that tell me? अगेन ये जो आपने गेस फिल करना है वो स्ट्रिक्टली सेंटेंस से करना है ना। यहाँ पे इम्प्लीकेशन क्या आ रही है? इम्प्लीकेशन ये आ रही है, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ इफ लेफ्ट अलोन यार, राइट। सो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि उसके सिनोनिमस हो। डोमिनेंट इंटरेस्ट वट एवर दैट इज,
often benefit most from absence of governmental interference could be a good guess fill क्योंकि they can take care of themselves if left alone, right? So okay, absence is a good fill. अब absence के closest जो option है उसको pick करते हैं. Intensification क्या होता है? Intensification तो यार opposite मतलब नहीं दे रहा, आप intensify कर रहे हो governmental interference को. Would they benefit from it since they are able to take care of themselves if left alone? I mean, yeah, it's quite far away from our guess fill. Authorization, आप authorize कर रहे हो governmental interference को, absence का opposite meaning दे रहा है. Centralization of governmental interference, like governmental interference जो है वो कोई central authority से हो रहा है, हो तो रहा है, right? It doesn't show absence. So centralization goes out. पहली तीन options तो निकल गई. Improvisation of governmental interference, like आप improvise कर रहे हो governmental interference को. For me, जितनी अंग्रेजी मुझे आती है, this option अंग्रेजी wise at least doesn't make sense. एक ही रह गया, but does that come any, close to what our guess fill was, which was absence? So dominant interest, absence के है, elimination, absence makes sense. It's quite synonymous. So, but let's read it, fill it and read it. कि यार, does it make sense? So dominant interest often benefit most from elimination of governmental interference in business since they are able to take care of themselves if left alone. Makes perfect sense. Rings no khatre ki bell. We can move on to the next question. अच्छा जी, next question. एक चीज़ मैं बता दूँ, the first time I solved this I got it incorrect I guess twice. Like मुझे समझ नहीं आ रही थी यार इसका कहाँ से guess करूँ और क्या होता है. But anyway, I did end up scoring a 163 on verbal, which is a pretty good score. So अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस चीज़ को जहन में रखो, बार बार मैं इसको आपको याद दिलाता रहूँगा. It's a learning process. Just keep a good catalog of your mistakes, of your weaknesses, because that's the only thing जो GRE में आपको आगे लेके जाएगा. खैर, coming back. Kagan या Kagan, I still do not know how to pronounce it, maintains that an infant's reactions to its first stressful experiences are part of a natural process of development. किसी की position बताई हुई है कि वो बंदा या बंदी, I do not even know the gender of this name, कि वो maintain करता / करती है कि एक infant को क्या कहेंगे उर्दू में, नौनिहाल. Anyway, let's come back to infants. कि एक infants के reaction to its first stressful experience जो है ना, वो एक normal, एक natural, not even, okay, I wouldn't put words into it. Apologies for that. A natural process of development. Okay. Not harbingers of childhood unhappiness or dash signs of adolescent anxiety. तो कहा यह जा रहा है कि यार इन्फेंसी के अंदर इनके जो स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस को मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ. स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस है ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है. ओके फाइन. नॉट हार्बिंजर्स ऑफ चाइल्डहुड अनहैप्पी. हार्बिंजर क्या होता है? अगर देखो ना, वोकैबुलरी ना पता हो तो बंदा गेस भी नहीं कर सकता कभी कभार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्चुअली. यार हार्बिंजर किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि एक प्रिडिक्शन देती होती है ऑफ व्हाट इज टू कम, राइट. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यार ये जो इन्फेंसी के अंदर इनके स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस हैं वो नेचुरल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है. दे आर नॉट a future sign of childhood unhappiness or futuristic signs of adolescent anxiety हो सकता है, right? इन्फेंसी के बाद जो है चाइल्डहुड आता है, राइट. उस चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस आती है. यार ना भी पता होता कि एडोलेसेंस क्या है. इतनी समझ आ गई है कि यहाँ पे ये जो भी बंदा या बंदी है उसका, मोस्ट प्रॉब्ली इट साउंड्स लाइक अ मेल नेम टू मी, बट एनीवे, उसका पोजीशन, उसका आर्ग्यूमेंट या उसका ओपिनियन ये है कि यार जो इन्फेंट्स के रिएक्शंस होते हैं ना फर्स्ट स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस, वो नेचुरल पार्ट है यार डेवलपमेंट का, प्रोसेस का, नेचुरल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है. ओके, उसका एक पार्ट है.
नॉट साइंस ऑफ चाइल्डहुड अनहैप्पीनेस कि यार इधर स्ट्रेस मिला है आगे चाइल्डहुड में अनहैप्पी होगा, या आई थिंक यू नो फॉर शैडोइंग साइंस ऑफ एडोलेसेंट एंग्जाइटी। अभी जो मैं अपनी तरफ से इधर गेस मार रहा हूँ ना, फॉर शैडोइंग, आई डू नॉट इवन लाइक क्या ये इसमें कॉन्टेक्चुअली फिट भी आता है या नहीं आता, बट हमें आइडिया लेना होता है गेस में, गेस के अंदर ही हम ऑप्शन तो पिक नहीं करते, राइट? ओके फाइन, लेट्स फाइंड समथिंग क्लोजर टू इट दिस, कोई फॉर शैडो करना मतलब कोई ऐसी चीज़ जो जो आगे आ रहा है उसको बताए, राइट? डज prophetic go with that? I think it does. Prophetic, like prophecy क्या होती थी? Prophecy present के बारे में तो नहीं होती ना, फ्यूचर के बारे में होती है। समथिंग prophetic is something about the future. Prophetic signs of adolescent anxiety is a good option. नॉर्मल मैं क्यों फिट करूँगा? नॉर्मल शायद मैं इस वजह से फिट कर सकता हूँ कि मैं ये वाला पार्ट पढ़ूँ कि आप पार्ट ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, और शायद नेचुरल से मैं कहीं अज्यूम कर जाऊँ यार कि नेचुरल है वो फिर नॉर्मल भी है, नॉट नेसेसरली, आई मीन a bear trying to eat you is very natural, not normal, but anyway, लेकिन ये है ना कि आगे कंटिन्यूटी क्या है, नॉट हार्बिंजर्स ऑफ चाइल्डहुड एंड हैप्पीनेस और हार्बिंजिंग साइंस या फोरशैडोइंग साइंस ऑफ एडोलेसेंट एंजाइटी। तो नॉर्मल उससे हट जाता है, इससे दूर है, फोरशैडोइंग से दूर है। इट हैज़ टू बी कंटिन्यूस, द सेंटेंस नीड्स टू मेंटेन इट्स टेम्पो, यू कुड से इट्स थीम, इट्स इमीडिएट थीम। तो यहाँ पे यार नॉर्मल इस वजह से निकल जाता है। मोनोटोनस साइंस ऑफ एडोलेसेंट एंजाइटी, दे आर नॉट हार्बिंजर्स ऑफ चाइल्डहुड हैप्पीनेस, और मोनोटोनस साइंस, अब मोनोटोनस का मतलब होता है यूनिफॉर्म, वेरी बोरिंग रूटीन टाइप। अगेन यार पहली बात क्या हो रही है, नॉट हार्बिंजर्स ऑफ चाइल्डहुड एंड हैप्पीनेस, राइट? है अभी वो इन्फेंट, और मोनोटोनस साइंस ऑफ एडोलेसेंट एंग्जाइटी वो इन्फेंसी में हो, या ये भी है, सी देयर इज अनदर प्रॉब्लम। अभी इन्फेंसी की बात हो रही है, ठीक है? इन्फेंसी के अंदर अगर है उसके स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं वो एक नेचुरल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। तो वो एडोलेसेंट एंग्जाइटी की मोनोटोनस साइन कैसे उसमें शो करना स्टार्ट है उसी फेज के अंदर? सो मोनोटोनस अगेन गेस से भी दूर है, थोड़ा सा और डीप जाते हो तो सेंटेंस से भी कॉस में दूर है। वर्चुअल साइंस या रियल साइंस की बात नहीं हुई, अगेन पहले बात हुई हुई है इमिजिएटली, जिससे कंटिन्यूटी हमने बरकरार रखनी है कि नॉट हार्बिंजर्स ऑफ चाइल्डहुड एंड हैप्पीनेस, राइट? नॉट, you could say, since I've now read the option, not prophetic signs of childhood unhappiness कि यार आगे childhood में ना जाके अनहैप्पी होगा ये बच्चा। तो वर्चुअल और रियल की बात नहीं हुई, समथिंग क्लोजर टू foreshadowing की बात हुई है। अगेन टिपिकल साइंस ऑफ एडोलेसेंट एंग्जाइटी, मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम, इसको तो मैंने रूल आउट किया था इस वजह से ना कि यार मतलब वो अब इन्फेंसी की बात हो रही है कि इन्फेंसी के अंदर जो रिएक्शंस हैं to their first stressful experiences, वहाँ पे them showing typical signs of adolescent anxiety, I mean that doesn't make sense, even to the tube light that I was verbal में back then. तो prophetic जो है that makes the most sense here. अब इसको पढ़ के देखते हैं। Kagan maintains that an infant's reactions to its first stressful experiences are part of a natural process of development, not harbingers of childhood unhappiness or prophetic signs of adolescent anxiety. Makes absolute sense. It is congruous to the theme, the context of the text, and it's closest to द गेस फिल, जो कि हमने लॉजिकली सेंटेंस से ही उठाया था, उसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रख के।
अच्छा जी, an investigation that is dash, आई डोंट नो, अच्छी, बुरी, घटिया, कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन जो कि डैश होती है, आगे बढ़ते हैं चलो। कैन ओकेजनली यील्ड न्यू फैक्ट्स। एक इन्वेस्टिगेशन जो कि डैश होती है वो कभी कभार यील्ड कर सकती है नए फैक्ट्स। अच्छा, इवन नोटेबल वंस। बट अब सी यहाँ पे इधर ही रोक के क्लू मिल रहा है ना, कि इसके बाद जो भी आ रहा है दैट हैज़ टू बी इन कंट्रास्ट विद दिस। मतलब ये जो इन्वेस्टिगेशन जिसकी बात की जा रही है ना शुरू में, ये इन्वेस्टिगेशन उस चीज़ के ऑपोजिट होनी चाहिए, राइट? अगर इतना आगे गेस नहीं भी कर पाते तो लेट्स रीड एंड लेट्स सी। बट typically the appearance of such facts is the result of a search in a definite direction। तो इसका मतलब है ये वाली इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, है ना? क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन जो कि डैश होती है वो भी कभी कभार नए फैक्ट्स निकाल सकती है, इवन नोटेबल वंस। लेकिन टिपिकली जो है ना, इस तरह के फैक्ट्स की अपेयरेंस एक डेफिनेट डायरेक्शन में की गई सर्च का रिजल्ट होता है, यानी कि फिर इस डेफिनेट डायरेक्शन के ऑपोजिट कोई चीज़ है। सो एन इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ नॉट इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। सो हमारे 3 बेबी स्टेप्स के अंदर एक गेस फिल तो हमने कर लिया है। आए इसको अब मैच करके देखते हैं। इज नॉट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन सिनोनिमस टू टाइमली? टाइमली चीज़ तो वो होती है जो टाइम पे की जाए ना यार। मतलब ये नॉट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन वाला मीनिंग कहाँ दे रही है? नहीं दे रही है, मिस कराओ। अनगाइडेड कुड बी समथिंग विच इज़ नॉट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। यप, तो इसको देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन को भी पढ़ते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल। नॉट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब होता है जो कि एक ख़ास किसी दिशा कहने लगा था, ख़ास किसी सिमत में ना हो, ठीक है। अनकॉम्प्लिकेटेड का ऑपोजिट कॉम्प्लिकेटेड, like uncomplicated, how is it synonymous to not being not in a definite direction? It's something different। पेचीदा, गैर पेचीदा। क्या गैर पेचीदा चीज़ किसी डेफिनेट डायरेक्शन में? ना, डजंट मेक सेंस। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के मतलब डिफरेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है कि समथिंग फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट माइंड। मेरा ऑब्जेक्टिव व्यू किसी चीज़ के बारे में जो होगा ना वो बाइसेस से पाक साफ होगा। सब्जेक्टिव जो होगा उसमें कोई इन्फ्लुएंस होगा। एनीवे, नॉट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन से सब्जेक्टिव का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। डायरेक्शन लेसनेस के कोई मतलब नहीं देता सब्जेक्टिव। ज़बरदस्ती कहानी बनाने बैठ जाओ कि हाँ यार यू नो गिव्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो द ओनली ऑप्शन जो कि हमारे गेस के नज़दीक तरीन है दैट इज़ अनगाइडेड। सो एन इन्वेस्टिगेशन जो कि अनगाइडेड होती है can occasionally yield new facts, even notable ones. But typically, the appearance of such facts जो है, that is the result of a search in a definite direction. So the right option is unguided for sure. Moving on. It is, अच्छा ये आ गया ना एक डबल ब्लैंक टेक्स्ट कंप्लीशन का सवाल। So it is dash that so many portrait paintings hang in art museums। पता नहीं, it is good, it is bad, it is cool, it is not cool, it is weird, it is creepy, कुछ भी हो सकता है यार। पढ़ते हैं आगे। Since the subject matter seems to dictate a status closer to pictures in the family photograph album than to high art। यहाँ पे आके ना मैं कुछ गेस कर सकता हूँ। देखो ये डैश है कि इतनी सारी पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, मतलब वो जो पोर्ट्रेट्स होती हैं, आई मीन लोगों की, ये डैश है कि बहुत सारी पोर्ट्रेट पेंटिंग्स जो है ना वो आर्ट म्यूजियम्स में टंगी हुई हैं। सिंस उनका जो सब्जेक्ट मैटर है, द पर्सन, वो एक फैमिली फोटोग्राफ एल्बम के ज़्यादा नज़दीक है एक हाई आर्ट के कंपैरिजन में। मतलब अगर आप उसको क्लासिफाई करो ना, क्या एक, आई मीन इट्स एन आर्ट म्यूजियम, बट दिस थिंग दैट इज हैंगिंग इन द आर्ट म्यूजियम, इज इट क्लोजर टू आर्ट? नो, इट्स मोर क्लोजर टू दैट फैमिली फोटोग्राफ album, right?
सो यहाँ से गेस हो सकता है कि इट इज़, आई डोंट नो, कंफ्यूजिंग, इट कुड बी कंफ्यूजिंग कि भाई ये क्या कर रही है आर्ट म्यूजियम में। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है दैट डिक्टेट्स अ स्टेटस व्हिच इज क्लोजर टू पिक्चर्स इन द फैमिली फोटोग्राफ एल्बम देन टू हाई आर्ट, व्हाट इज इट डूइंग देयर। सो इट कुड बी कंफ्यूजिंग, it could be illogical. So confusing, illogical में से अगर देखते हो तो जो ब्लैंक ए के लिए 3 ऑप्शंस हैं उसमें से क्लोजेस्ट जो है ना, इज इट अंडरस्टैंडेबल कि यार इतने सारे पोर्ट्रेट पेंटिंग्स लटके हुए हैं, नहीं, फिर ऐसी बात क्यों कहेगा कि यार इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो फोटोग्राफ एल्बम से ज़्यादा नज़दीक है, सो इट कैन नॉट बी अंडरस्टैंडेबल। इररेलेवेंट है तो फिर आगे बात क्यों करें, क्योंकि आगे भी बात हो रही है ना, जैसे बट परहैप्स इट इज़ द आर्टिस्टिक स्केल विद विच द पोर्ट्रेट्स आर पेंटिंग दैट समथिंग समथिंग। अच्छा, मजे की बात, इसको जब मैं पहले दफ़ा सॉल्व किया था मेरे जहन में आया ही जस्टिफाई था, जस्टिफाइज लेकिन शायद ये वो आर्टिस्टिक स्केल है जिससे ये पोर्ट्रेट्स बनाई जाती हैं जो कि जवाज़ देता है फॉर देयर प्रेजेंस इन आर्ट म्यूजियम्स विच मेक्स विच मेक्स इट सेंसिकल कि वो आर्ट म्यूजियम में टंगी हुई है, राइट। बट एनीवे, तो इसलिए रेलिवेंट नहीं हो सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 1 would be surprising for sure, right? Something confusing is kind of close to something surprising. Illogical की नहीं है, लेकिन I mean guess आपके perfect तो नहीं हो सकते। अच्छा, but perhaps it is the artistic skill जिनसे ये portraits बनाई जाती हैं which what challenges their I mean यहाँ पे तो अब explanation दी जा रही है ना यार, लेकिन शायद ये वो artistic skill है जिनसे ये portraits बनाई जाती हैं जो चैलेंज करते हैं उनके प्रेजेंस इन आर्ट म्यूजियम। यार भाई तुम वही तो बात करके आ रहे हो, आगे उसके ऑपोजिट बात हो रही है ना कि यार नहीं, लेकिन शायद इस वजह से जो है ना इसका कोई जवाब मिलता है। सो इट कैन नॉट बी चैलेंजेस, changes their presence in art museum, changes in what sense? I mean we started with something which was not making sense, right? So we have to, if we are saying उसके बाद कोई ऐसी चीज़ कि लेकिन शायद वो आर्टिस्टिक स्किल है जिससे पोर्ट्रेट्स पेंट की जाती हैं, फिर हम ये कहेंगे दैट changes their presence in art. No, it doesn't make sense. So it has to be, for second blank it has to be justifies. So पढ़ते हैं इसको यार एक दफ़ा। It is surprising that so many portrait paintings hang in art museums, since the subject matter seems to dictate a status closer to pictures in the family photograph album than to high art. लेकिन शायद it is the artistic skill with which the portraits are painted that justifies their presence in art museum। अच्छा नोट करो, वैसे ये मैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में पढ़ रहा हूँ ना इससे पढ़ के वैसे ही सेंस बनना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रिक, a tip that I can give you, try to bring life to the sentence in the way you read it, right? तो उससे जब आप फिल और रीड करते हो ना, जो आखिरी स्टेप है ऑफ फिलिंग एंड रीडिंग, तो वहाँ पे बड़ा एक घंटी बजती होती है अगर देयर समथिंग रॉन्ग कि नॉट मेकिंग सेंस, तो मार्क इट, इट रियली हेल्प्स। एनीवे, फर्स्ट ब्लैंक का सरप्राइजिंग, सेकंड का जस्टिफाइज।
अच्छा, यहाँ पे एग्जैक्ट जीआरई वाला टेम्पलेट हमने फॉलो नहीं किया। मैंने आपको बताया था ना, जीआरई में टेक्स्ट कंप्लीशन के 6 सवाल आते हैं, यहाँ पे टोटल 5 है। सेंटेंस इक्विवेलेंस के 4 आते हैं, यहाँ पे कीवर्ड आगे जाके सी के हमने 3 रखे हुए हैं। वो ये है कि एक लाइक अ स्टेप बिहाइंड द एक्चुअल जीआरई। वी लाइक इवेंचुअली प्रैक्टिस आप इससे करो और मॉक एग्जाम्स दो और आपका स्टैमिना बनता जाएगा। खैर, लेट्स अप्लाई द सेम बेबी स्टेप फॉर्मूला टू दिस टेक्स्ट कंप्लीशन का सवाल। So, in stark contrast to his later, I don't know what, later अक्लमंदी, later बेवकूफ़ी, कुछ भी हो सकता है, मतलब उससे बिल्कुल कंट्रास्ट में सिम्पसन जो था, ही वॉज लार्जली डैश। इसका मतलब है ये दोनों ब्लैंक्स आपस में ऑपोजिट होने चाहिए ना, मतलब बाद में वो कुछ हो गया। सिम्पसन वॉज लार्जली डैश, कुछ और था। ओके, क्या था, आगे बढ़ते हैं। सिम्पसन वॉज लार्जली डैश पॉलिटिक्स ड्यूरिंग हिज कॉलेज ईयर्स। ओके, मतलब कॉलेज ईयर्स में अगर वो बहुत इन था पॉलिटिक्स में, तो यहाँ पे इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हिज लेटर आउट होने की स्टेट, या वाइस वर्सा, इन आउट, आई मीन इट कुड बी एनीथिंग लाइक दैट। ये है कि ऑपोजिट होंगे। In stark contrast to his later dash, Simpson was largely dash politics during his college years. अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ये पता चल रहा है कि opposite होने चाहिए। Despite the fact that the campus he attended was rife, भरा हुआ था with political activity। तो कैंपस जिसमें वो पढ़ता था, अटेंड कर रहा था, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी से भरा भरा हुआ था। तो सिम्पसन वॉज लार्जली व्हाट, इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। फिर ये अगर इन है तो फिर ये डिस्पाइट क्यों आएगा, बावजूद इसके कि उसके जो उसका कैंपस था वो भरा हुआ था पॉलिटिकल एक्टिविटी से, राइट। तो इसका मतलब है वो उस दौरान में ही वॉज आउट। बाय आउट आई मीन लाइक नॉट वेरी वेरी अनइन्वॉल्व्ड। अनइन्वॉल्व, यहाँ सही कैसा आ रहा है कि अनइन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स कर लेते हैं, ठीक है। सिम्पसन वॉज लार्जली अनइन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग हिज कॉलेज ईयर्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट द कैंपस ही अटेंडेड वाज राइफ विद पॉलिटिकल एक्टिविटी। ओके फाइन, अब अनइन्वॉल्व का ये ऑपोजिट होना चाहिए, इसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हिज लेटर इन्वॉल्वमेंट। अच्छा जी, इन्वॉल्वमेंट के सबसे नज़दीक तरीन कौन सा है, एपथी। एम्पैथी कहते हैं एक अंडरस्टैंडिंग को, एक अवेयरनेस को, सॉर्ट ऑफ वाइकेरियसली लिविंग एन एक्सपीरियंस। आपके साथ नहीं है लेकिन किसी और के साथ हो रहा है और आप उसको लिव करके यू कैन फील इट। एपैथी उसका ऑपोजिट होता है, एम्पैथी ना होना। तो इन स्टार कॉन्ट्रास्ट हिज लेट, एपैथी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी समथिंग which is closer to involvement in politics, not like apathy, being away from it वाली state which apathy shows। activism इस वजह से एक अच्छा जो है फिट है। affability तो यार मतलब तो की नहीं बनाती ना, affability in stark contrast to his later दोस्तानापन, that's affability, right? being amiable, genial, good natured, very easy to जो approach person होता है वो affable सा होता है, friendly सा। That doesn't even make sense, man. So it has to be activism पहले blank के लिए। अच्छा, Simpson was largely uninvolved in politics, devoted to, nope, यही तो contrast कर रहे हैं कि despite the fact कि उसका कैंपस भरा पड़ा था, वो भाईजान साइड पे चल रहे थे पॉलिटिक्स से। indifferent to, मतलब कोई फ़र्क ना पड़ता हो किसी चीज़ से, राइट। he was indifferent to politics, हो रही है नहीं हो रही है बस ठीक है सही है। uninvolved के नज़दीक तो है ये। शेप्ड बाय पॉलिटिक्स का मतलब तो फिर वही आ गया ना कि वो भरा हुआ था, वही बस शेप्ड बाय इट, उस पर उसका असर हो रहा था। सो इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हिज लेटर एक्टिविज्म, मतलब बाद में जाके बहुत एक्टिव हो गया, उससे बिल्कुल ही स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट का उर्दू वर्ड मेरे ध्यान में नहीं आ रहा क्या था, बट एनी वे आई एम श्योर यू नो वट कॉन्ट्रास्ट मीन्स। In stark contrast to his later activism, Simpson was largely indifferent to politics during his college years, despite the fact that the campus he attended was rife with political activity. Makes perfect sense. हमने guess भी किया, match करके blanks pick किए, options pick किए,
We filled it and read it. It makes absolute sense. Let's move on. मैंने बताया था कि जीआरई पे ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस में दो टाइप्स होती है, राइट? एक टेक्स्ट कंप्लीशन जो भी हम करके समझ के उसकी टाइमिंग क्या होती है, तादाद क्या होती है, वो सारी बातें मैं आपको बताएंगे। दूसरा है सेंटेंस इक्विवेलेंस। यार सेंटेंस इक्विवेलेंस जो है ना, ये थोड़ा सा वो कैब हैवी होता है। मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग, वो तो जाहिर सी बात है इसमें भी टेस्ट हो रही होती है। लेकिन वोकैबलरी, इन माय ओपिनियन, and what is congruous to the purpose of this type of a blank question, vocabulary जो है वो हैवी होती है, मुश्किल होती है, राइट? अच्छा, इसको करना है क्या? सबसे पहले उसकी टाइमिंग देख लो। सेंटेंस इक्विवेलेंस को आपने टाइम इस तरह से करना है कि आपने 50 सेकेंड्स पर क्वेश्चन रखना है। प्रैक्टिस के अंदर कभी कभार आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा, कभी थोड़ा सा कम भी मिलेगा। ये एवरेज रेट एक मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? तो प्रैक्टिस के अंदर आई नो when to pull you a little and when to just kind of let you go into that thinking. तो आप जब असाइनमेंट्स करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद, तो आपने स्ट्रिक्टली 50 सेकंड पर क्वेश्चन का रेट रखना है सेंटेंस इक्विवेलेंस के लिए। और उसके बाद फिर बैठ के सोचते रहना, यार ये सही कैसे नहीं हुआ और कैसे हो गया है सही। या दैट शुड आल्सो मेक सेंस, राइट? अब सेंटेंस इक्विवेलेंस के यार टोटल 4 सवाल आते होते हैं जीआरई पे, और चारों के चारों सवाल जो है ना, उनमें एक ही ब्लैंक होगा, टेक्स्ट होगा, सिर्फ एक ब्लैंक होगा। इस एक ब्लैंक से रिलेटेड के लिए, नॉट लाइक रिलेटेड, नॉट नेसेसरली, उसके लिए आपको 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस दी होंगी, ठीक है? सो यू विल हैव टोटल ऑफ 6 ऑप्शंस फॉर दैट वन ब्लैंक, और उसमें से आपने एक पेयर पिक करना होगा। अब ये पेयर जो है, दिस विल बी अ सिनोनिमस पेयर, कीप दैट इन माइंड गाइस। हेंस द नेम सेंटेंस इक्विवेलेंस, कि यार ये जो मैंने पेयर पिक किया है आपस में सिनोनिमस है। मैं इस पेयर के इस वर्ड को प्लग इन करूं तो इट विल बी इक्विवेलेंट, हेंस द नेम सेंटेंस इक्विवेलेंस। It will be equivalent to me plugging that word in, while of course keeping the sense of the sentence intact. So अभी जो सवाल आएंगे प्रैक्टिस के, बस ये ज़हन में रखना कि आपने एक synonymous pair पिक करना है. Let's get into that. Let me help you formulate the baby steps you need to ace sentence equivalence के सवालात. यार पहला स्टेप तो वही है, पहला स्टेप तो यही है कि पढ़ो, ठीक है, read and come up with a guess fill.
Second step is interesting. I want you to now literally forget the guess fill, और इसका मैं आपको ना रीज़न बताऊंगा। यार होता ही है सेंटेंस इक्विवेलेंस के सवालात में आपने कुछ गैस कर लिया, ठीक है। अब जब आप ऑप्शंस में जाते हो ना, क्योंकि वो गैस परफेक्ट तो नहीं होता ना यार, राइट। तो ऑप्शंस में ना उससे क्लोज आपको तीन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ना तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, राइट। और फिर उसमें बड़ा टाइम वेस्ट होता है सोचते हुए यार कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। इट गेट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब टेस्ट की क्लॉक का, टाइमर का प्रेशर आपके ऊपर हो। तो या आई गेस करो और फिर गेस को साइड पे रख दो। मैं इसको कैटेगोरिकली एक स्टेप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई वांट यू टू रिमेंबर कि उसको फिर कैरी नहीं करना आगे। गेस किया, साइड पे रख दिया है, तो फिर गेस का फ़ायदा क्या है इधर? आई टेल यू, हैंग ऑन। है थर्ड स्टेप जो है ना, थर्ड स्टेप आपने पेयरिंग करनी है। आई गॉट अ वर्बल स्कोर विच कैन गेट मी इनटू आईवी लीग के प्रोग्राम्स, बट मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और आई स्ट्रगल विद वर्बल अ लॉट, ट्रस्ट मी। लेकिन उसमें ये हुआ कि जब मैंने वर्बल का स्कोर बढ़ाना स्टार्ट किया तो आई केम अप विद लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, राइट। फ्रॉम रीडिंग आई इन्वेंटेड माई ओन, देन आई टॉट फॉर ईयर्स, और उससे मुझे फर्दर चीज़ें डिस्कवर हुई लोगों से बात करके, उनकी अप्रोचेस देख के। यार पेयरिंग का फ़ायदा पता है क्या है? पेयरिंग का प्रैक्टिकली स्पीकिंग फ़ायदा ये है, हमने करना क्या होता है, ब्लैंक के लिए एक पेयर पिक करना होता है ना, सिनोनिमस। मेरे साथ एक्चुअल टेस्ट में सेकंड टाइम ये हुआ था कि एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था, उसमें मैंने जब पेयरिंग, मेरे से कुछ गेस नहीं हो रहा था, मैं सेकंड स्टेप तो फॉरगेटिंग द गेस तो छोड़ दो ना, जब मैं पेयरिंग करने आया ना वो पेयर ही एक था। तो दैट हैड टू बी द ऑप्शन, राइट। क्योंकि मुझे जो ऑप्शंस थे उनमें सबके मतलब पता थे, तो मैंने पेयरिंग कर ली और वो पेयर ही एक तो डेफिनेटली वो ही होना था यार, बाकी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सेंटेंस इक्विवेलेंस के लिए हमने एक सिनोनिमस पेयर उठाना होता है, राइट। सो एनीवे थर्ड स्टेप पेयरिंग करो, बट वो रेयर केस है जो मैंने बताया, अक्सर होता ही है कि दो पेयर्स आपके पास बच जाते हैं, फिर आप जाओगे वापस अपने गेस फिल में, फिर यू विल मैच द पेयर विच इज़ द क्लोजेस्ट टू योर गेस फिल। और अगर आपने पेयरिंग अच्छी की है, एंड गाइस जैसे ये गेस फिल वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सेंटेंस सीक्वेंस में पेयरिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सटल सटल छोटे छोटे डिफरेंसेस से जो मतलब है वो चेंज हो जाता है। सो कीप एन आई फॉर दैट, एंड वोकेबलरी करो, मगूश फ्लैश कार्ड्स को इस्तेमाल करो और थोड़ा सा डेप्थ में जाओ, vocabulary.com वेबसाइट को यूज़ करो, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट, it helped me a lot. It has helped like literally hundreds and hundreds of students that I taught to ace the verbal section, especially when it comes to vocabulary. Anyway, coming back, तो मैच करो अपने गेस फिल से, उसको उस पेयर को पिक करो, और फिर लास्ट स्टेप वही का वही है कि ज़रूरी नहीं है उस पेयर में एक वर्ड जो है पहले वो फिल करके रीड करो फिर दूसरा करो। जब अच्छी पेयरिंग की हुई है ना, इसका मतलब वो सिनोनिमस है, तो एक कोई वर्ड पिक कर लो, फिल इट एंड रीड। डज इट साउंड फिशी? इज देयर समथिंग रॉन्ग? वेल रीअटेम्प्ट करने से गुरेज करना है आपने, और वहीं पे मार्क करके आगे मूव कर जाना है, जो टाइम बचे उसमें रिविजिट कर लेना। चले इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं और गेस फिल करते हैं। एज माई नज़र आई साइट बिगैन टू डैश, आई डोंट नो, इम्प्रूव, गेट वर्स, कुछ भी हो सकता है ना। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम राइटिंग अबाउट इट, जैसे जैसे मेरी as कह रहे हैं ना, as like so it's happening in present, as my eyesight began to dash I spent a lot of time writing about it। क्योंकि डैश में जो चीज़ होती है वो आई मीन कंटिन्यूटी तोड़ देती है, मैं नहीं पढ़ता होता उसको, मेरी एक आदत है, आई विल फॉलो दैट। सो ओके, एज माई आई साइट बिगेन टू डैश आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम राइटिंग अबाउट इट, डिस्क्राइबिंग व्हाट आई सॉ एज आई लुक्ड आउट थ्रू डैमेज्ड आईज। और क्या लिखा जा रहा था, पोइम्स और आई जर्नल्स लिखे जा रहे थे, ओके फाइन, जो कि डिस्क्राइब कर रहे थे व्हाट आई सॉ एज आई लुक्ड आउट थ्रू डैमेज्ड आईज। तो ये प्रेजेंट टेंस है ना यार, यू नो, एज I looked out through damaged eyes as my eyesight began to decline. So it has to be something like decline,
right? Something like, as my eyesight began to worsen, yeah, something like that. क्योंकि जैसे हो रही है ना, as it is happening, as he or she is looking out through damaged eyes, he or she is writing both poems and eye journals describing the experience. Okay. अब आ जाते हैं जी पेयरिंग पे. डिटीरिएट करना किसी चीज़ का जो है वो कमज़ोर हो जाना, वीकन हो जाना, कमतर हो जाना के माने में आता है. तो डिटीरिएट का डी के साथ, डिक्लाइन के साथ पेयर बनता है. अच्छा, शार्पन क्या होता है? शार्पन होता है किसी लेवल पे कोई चीज़ हो. टू शार्पन इज़ टू गो अबव दैट, राइट? टू शार्पन समथिंग इस उस लेवल से ऊपर ले जाना. तो शार्पन और इम्प्रूव का बनता है. रिकवर और एडजस्ट का नहीं है, रिकवर और एडजस्ट का नहीं बनता. रिकवर कर जाना और एडजस्ट कर जाना आर नॉट कम्प्लीटली सिनोनिमस. कुछ लोग वैसे यहाँ पे रिकवर का इम्प्रूव या शार्पन से बना सकते हैं. देखो रिकवर अगेन डेप्थ में जाते हैं थोड़ा सा. रिकवर क्या होता है? एक लेवल पे हो, उससे नीचे आओ और वापस उधर जाओ इज़ रिकवरिंग. शार्पनिंग एंड इम्प्रूविंग इज़ डिफरेंट ना, एक लेवल से ऊपर जाना. सो हमारे पास दो पेयर है, एक डिटीरिएट और डिक्लाइन वाला और एक शार्पन और इम्प्रूव वाला. ठीक है, ये दोनों ऑप्शन जो वैसे ही रूल आउट होगी. अब हम करते हैं मैचिंग. हमने भुला दिया गैस को साइड पे करके पेयरिंग की, अब हम करते हैं मैचिंग. तो डिक्लाइन या वर्सन, वैसे मज़े की बात वो ऑप्शन वाला ही गैस हो गया मेरे से. आई मीन दैट्स लकी. So as my, it has to be option A and D, alpha and delta, deteriorate and decline, right? Because as it is happening, that person is writing about it as he or she is looking out through damaged eyes. So as my eyesight began to decline, naturally for some reason मेरे ज़हन में decline word आ रहा था इसका, I spent a lot of time writing about it. Both poems and eye journals describing what I saw as I looked out through damaged eyes makes perfect sense. So it's alpha and delta, deteriorate and decline. अच्छा, दूसरा सवाल तुम लोगों ने किया, उसमें कहा जा रहा है कि यार जो जज की स्टैंडिंग थी लीगल कम्युनिटी के अंदर, दो शेकन बाय फोनी एलिगेशंस होती हैं. एलिगेशंस लाइक फोनी इज समथिंग which is like probably dishonest, something which is false or sham, right? Though shaken by false allegations कह सकते हो of wrongdoing, emerged at long, like though shaken by it, it emerged at long last unshaken. मेरा गेस का यार रूल ये है कि मैं I was so traumatized by verbal when I was preparing for it कि मैंने ना strict rules बना लिए और they really helped me. अब वो strict rule क्या है कि यार strictly clue sentence से लेना है. और यहाँ पे लिखा मैंने दो shaken का word by phony allegations, it emerged at long last unshaken पे मैं रहूँगा. मैं इधर उधर भी guess में भी नहीं जाऊँगा, ठीक है, ताकि वो गलत ऑप्शन ना पिक हो जाए मेरे से. अच्छा जी, unshaken, let me write it again. Unshaken was quite shaken. ओके, अब आ जाते हैं पेयरिंग पे. पेयरिंग जब आप करते हो तो अनक्वालिफाइड का अनडिमिनिश्ड, जो डिमिनिश ना हुआ हो, नहीं, अनडिसाइडेड से भी नहीं बनता. अनडैमेज, क्वालिफाई ना होना, डैमेज ना होना होता है. अनरिजॉल्व नहीं यार, इन माय ओपिनियन अनक्वालिफाइड का तो यहाँ पे कोई पेयर ही नहीं है. अनडिमिनिश्ड और अनडैमेज्ड का बनता है. डिमिनिश ना हुआ हुआ हो, डैमेज ना हुआ हुआ हो, सेम थिंग. अनडिसाइडेड और अनरिजॉल्व्ड का काइंड ऑफ बनता है. या इट इज़ अ कॉन्टेक्चुअल पेयर, ठीक है. अनप्रिंसिपल्ड का तो अगेन देयर इज नो पेयर फॉर. दो पेयर्स हैं. अनशेकन के नज़दीक तरीन कौन सा है? डेफिनेटली, आई मीन नो ब्रेनर, अनडिमिनिश्ड, अनडैमेज्ड. सो उस जज की स्टैंडिंग लीगल कम्युनिटी में दो एक दफ़ा शेक कर दी हो गई थी फोनी एलिगेशन से. इमर्ज्ड एट लॉन्ग लास्ट अनडिमिनिश्ड, बच गया, डैमेज नहीं हुआ. और ये सारा का सारा गेस जो है ना, वो ये जो दो वाला कीवर्ड है ना, दो शेकन बाय इट, इमर्ज्ड एट लॉन्ग लास्ट अनशेकन, इस कीवर्ड की वजह से मुझे पता चल गया.
ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते होते हैं, बावजूद इसके, राइट। बावजूद इसके से मुझे पता चल गया कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका कोई ऐसा रिजल्ट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, यू नो, बावजूद इसके ये हुआ। सो लुक आउट फॉर सच वर्ड्स इन टेक्स्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस के सवालात, ताकि आपको पता चले यार कि ब्लैंक का रिलेशन जो है ना वो बाकी सेंटेंस से क्या है। सो इट्स अनडैमेज्ड फॉर दिस, और पिछले ब्लैंक के लिए था डिटेरियोरेट एंड डिक्लाइन। Modern agricultural practices जो हैं, they have been extremely successful in increasing the productivity of major food crops. Yet, despite heavy use of pesticides, क्या हो सकता है? कम losses to diseases and insect pests are sustained each year. Nah, I mean, heavy use of pesticides should result in no losses to diseases and insect pests, right? लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि yet despite, बावजूद इसके, अच्छा वो पहले वाले सवाल में मैंने बावजूद का ही आई थिंक कीवर्ड यूज़ किया था उर्दू की लैंग्वेज के अंदर के, उससे कैसी टोन सेट होती है, यहाँ पे आ भी गया। तो बावजूद इसके कि हैवी यूज़ हो रहा है पेस्टिसाइड्स का, अच्छे खासे लॉसेस, आई मीन मेरे जहन में तो इसके लिए इफ़ आई वर सॉल्विंग इट आई वुड फील इट अच्छे खासे लॉसेस या काफ़ी लॉसेस, यू नो, काफ़ी अच्छे खासे। सो बावजूद इसके कि हैवी यूज़ हो रहा है पेस्टिसाइड्स का, अच्छे खासे या काफ़ी लॉसेस टू डिजीजेस एंड इंसेक्ट पेस्ट्स आर सस्टेन्ड ईच ईयर। ले जी, गेस तो हो गया। सेकंड काम क्या करना है, भूल जाओ और आ जाओ पेयरिंग पे सेंटेंस इक्विवेलेंस के लिए। यार इनकॉन्ग्रुअस कहते हैं समथिंग दैट इज़ नॉट इन हार्मनी विद समथिंग एल्स। क्या एग्जांपल दी जाए? like a national anthem, Pak Sar Zameen Shad Baad, and I mean not really our current situation, it not what our national anthem would say it to be. So our national anthem is incongruous, is not in harmony with our reality. Dark example, but anyway, incongruous का पेयर कहीं बनता है reasonable, उस चीज़ को कहते हैं जो रीज़न पे मबनी हो ना, यार कोई रीज़नेबल बात करो। सिग्निफिकेंट वैसे उसके अच्छे खासे और काफ़ी के नज़दीक आ रहा है, खैर इन कांग्रेस के साथ नहीं बन रहा है इसका, तो इन कांग्रेस का कोई पेड़ नहीं है यार, इन कांग्रेस का पेड़ नहीं है। जो फोर्टुइटस होता है ना, इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स बाय अ लकी चांस, हसीन इत्तेफाक टाइप चीज़। इक्विटेबल भी उस चीज़ को कहते हैं जो इक्विटी बेस्ड हो, मतलब फेयर हो, इंसाफ पे मबनी हो। तो इन कांग्रेस का तो भाई कोई पेयर नहीं है, रीज़न पे मबनी, इंसाफ पे मबनी इस काइंड ऑफ क्लोज, मैं इसको इसका पेयर बना दूंगा। सिग्निफिकेंट होता है बिग इनफ इन मैग्नीट्यूड टू बी नोटिस, और वही कंसिडरेबल होता है। कंसिडरेबल एंड सिग्निफिकेंट का बनता है अल्फ़ा, और ऑप्शन एफ जो है उनके पेयर्स नहीं है, तो इट हैज़ टू बी इधर बी ई या सी डी। अच्छा तो फिर लास्ट क्या है जी? मैच, लास्ट नहीं, इसके बाद वाला स्टेप इज मैच। अच्छे खासे लॉसेस, काफ़ी लॉसेस, रीजनेबल लॉसेस, लाइक रीज़न पे, समझ पे मबनी लॉसेस विच मेक सेंस वाले लॉसेस नहीं, काफ़ी की कॉनोटेशन दी, तो रीजनेबल और इक्विटेबल तो निकल गया। इट हैज़ टू बी, it has to be significant and considerable.
Which brings me to the last step कि हम fill करेंगे plus read करेंगे. चलें जी. Fill and read, yeah. So modern agricultural practices have been extremely successful in increasing the productivity of major fruit crops. Yet, despite heavy use of pesticides, significant losses to diseases and insect pests are sustained each year. Makes perfect sense. Option C and D are synonymous and are the correct pair. Actually, let me correct that. Is the correct pair. Anyway, जो connotation थी हमने उससे ही pick किए कि despite अच्छे heavy use of pesticide अच्छे खासे losses to diseases and insect pests are sustained each year.